सीओडी पैरामीटर्स से वेस्ट वाटर को आइडेंटिफाई करने के लिए, वेस्ट वाटर में जो प्रेजेंस केमिकल है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए रिएजेंट का प्रिपरेशन करने के बाद अब हम उसके प्रोसीजर को कंसीडर करते हैं। प्रोसीजर में हम देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो होंगे। प्लेस 0.1 ग्राम ऑफ मरकरी सल्फेट, 0.4 ग्राम of mercury sulfate in reflux फ्लास्क। एक फ्लास्क, रिफ्लक्स फ्लास्क में हम 0.4 ग्राम मरकरी सल्फेट को लेंगे एंड ऐड करेंगे प्लस 20 ml ऑफ द सैंपल आर इन एक्वेट ऑफ द सैंपल डायलूट। 20 ml ऑफ डायलूट सैंपल को ऐड करेंगे। डायलूट सैंपल टू 20 ml with distilled water, to 20 ml with distilled water। मिक्स वेल एंड ऐड, मिक्स करेंगे प्लस ऐड करेंगे 10 ml ऑफ 0.25 नॉर्मेलिटी पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। ड्रॉप सम प्यूमिक स्टोन एंड स्लोली ऐड, स्लोली फिर ऐड करेंगे इसमें स्लोली 30 ml of H2SO4, then silver sulfate reagent, well continuously swirling the flask। कंटिन्यूसली हम फ्लास्क को क्या करेंगे, स्विरलिंग करेंगे। इफ द कलर चेंज टू ग्रीन, कलर जिससे चेंज होगा ग्रीन आ जाएगा, कलर फ्लास्क का कलर कैसा होगा, ग्रीन होगा। एंड ऐड मोर पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 and H2SO4, then silver sulfate reagent, or alternatively discard the solution and take fresh sample the laser aqueous। Mix the content of the flask thoroughly, connect the flask to the condenser। कंडेंसर से फिर फ्लास्क को कनेक्ट करेंगे एंड स्लोली हीट करेंगे। रिफ्लक्स फॉर connect the condenser, then slowly heat करने के बाद for at least 2 hour कूल एंड वॉश। 2 घंटे बाद हम उसको क्या करेंगे, 2 घंटे तक ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद उसको वॉश करेंगे। डाउन द कंडेंसर विद डिस्टिल्ड वाटर, डाउन द कंडेंसर विद डिस्टिल्ड वाटर such that the washing fall into the flask। Dilute to about 150 ml, cool and titrate the, dilute to about 150 ml, cool and titrate the, again titrate करना है, फिर titrate the unreacted potassium dichromate with N/10 normality ferrous ammonium sulfate, ferrous ammonium sulfate टाइट्रेट करना है। अनरिएक्ट पोटेशियम डाइक्रोमेट विथ N/10 ferrous ammonium sulfate। सॉल्यूशन यूजिंग
सॉल्यूशन यूजिंग, इस टाइट्रेशन में जो सॉल्यूशन हम यूज़ करेंगे उस सॉल्यूशन का नाम है फेरिन इंडिकेटर, जो इन पॉइंट या रिजल्ट को इंडिकेट करेगा। फेरिन इंडिकेटर, द कलर चेंज एट द इन पॉइंट पे, टाइट्रेशन में इन पॉइंट पे कलर चेंज होता है तो कलर चेंज होगा इन पॉइंट पे, वो ब्लू ग्रीन होगा, ब्लू ग्रीन टू वाइन रेड, ब्लू ग्रीन टू क्या हो जाएगा थोड़ी देर में वाइन रेड। परफॉर्म a blank experiment with distilled water instead of the water sample। कैलकुलेशन देख लेते हैं। Calculation, the COD of the sample is collected as follow: COD in milligram per liter is equals to, in bracket, V1 minus V2 into N into 800 upon X, where is a V1? V1 is a volume of ferrous ammonium sulfate run down in the blank experiment. Where is V2? Volume of ferrous ammonium sulfate run down in the test experiment. V1 is a test experiment run down. N for normality of ferrous ammonium sulfate. Solution. Again, X is a volume of test sample taken. Volume of test sample. And COD exact value is milligram per liter is a 250 milligram per liter. ICMR standard value and WHO standard value. Note: straight chain aliphatic compound, aromatic hydrocarbon and pyridine are not oxidized to any appreciable extent. Although this method gives more nearly complete oxidation than the paramagnetic method. The method can be used to determine COD value of 50 mg per liter or more with the concentrated dichromate. With the dilute dichromate value below 100 mg per liter are less accurate but indicate the order of magnitude. The method can be used to determine COD value. कितने लेवल तक की COD वैल्यू को डिटरमाइन कर सकता है? 50 मिलीग्राम पर लीटर और मोर with the concentrated dichromate. With the dilute dichromate value below 10 milligram per liter are less accurate but indicate the order of magnitude. Again, high COD cause in wastewater. High COD causes in wastewater. As most form of COD are water soluble. जितने भी एक्टिविटी हैं जैसे कि रिड्यूसल फूड एंड बर्वेज वेस्ट एंड कैन बॉटल्स, एंटी फ्रीजिंग, एमल्सीफाई, इंडस्ट्रियल फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर, जितने भी एक्टिविटी है वो सब फॉर्म
को क्या करते हैं, COD आर वाटर सॉल्युबल, और वाटर सॉल्युबल करके वाटर में केमिकल्स की मात्रा को बढ़ाकर वाटर को वेस्ट कर देता है या पॉल्यूटेड कर देता है। हाउ डू यू रिड्यूस COD इन वेस्ट वाटर? हाउ डू यू रिड्यूस COD इन वेस्ट वाटर? हम वेस्ट वाटर से COD को कैसे रिलीज करेंगे, रिड्यूस करेंगे? कोआगुलेशन एंड फ्लोक्युएशन प्रोसेस आर सम ऑफ द बेस्ट ऑप्शन टू ट्रीट पल्पिंग वेस्ट वाटर यूजिंग एल्यूमिनियम फेरिक क्लोराइड, लाइम फेरस सल्फेट एंड पॉलीएल्यूमिनियम टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स TSS। इस तरीके से हम वाटर में जितने भी केमिकली एक्सिस हैं, जो वाटर को पॉल्यूटेड करके रखा है, जो वाटर को वेस्ट करके रखा है, उसके लिए एक COD पैरामीटर तैयार किया गया है, जिससे हम उस वेस्ट वाटर में केमिकल को आइडेंटिफाई करके उसको एनालाइज करके प्योर वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं।